Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. How are you? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. How are you? Fine. Fine, All ma'am. of you? Okay. The better word is कि we are healthy and happy at home, है ना? So that Yes. is Yes, most ma'am. probably the fine word. So here, let's see. I'm going to ask you one question. Okay. So are you able to understood DNA structure and RNA structure? Yes, समझ में ma'am. आया बेटा डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर Yes, ma'am. अच्छे से? Now I am going to ask you what is the how the hereditary characters get transmitted from या फिर ऐसे बोलो कि what is the hereditary unit or genetic material, better way कि what is the genetic material? Yes, DNA. DNA. Then what Genes. is the chromosome? Ma'am, Ah. genes are the unit of heredity. Genes. Gene is the unit of hereditary. Yes. Then what do you mean by chromosome? What are chromosomes? What is its function? Yes, anybody? Chromosome क्या है? It is a long DNA molecule, we can say. डीएनए अलग होता है और क्रोमोसोम अलग होता है क्या? No, X ma'am. and Y. हाँ? X and Y chromosome. Y chromosome X है. बेटा I am asking you like such type of questions. So I want to make your ideas clear. है ना? हम लोग अक्सर जो है तो अगर हमको हेरिडिटरी यूनिट पूछा जाए तो हम कभी डीएनए बोलते हैं, कभी जो है तो जीन्स बोलते हैं, और जब हम क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल. इट इज रिस्पांसिबल टू कैरी some genetical character from one generation to another generation. तो ये सारी चीजें जो है तो how they are interpret with each other. So let's see now. ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है तो these chromosomes they are present in the form of thread like appearance. एक नेटवर्क है, एक thread like appearance है which is present in the nucleus, and when the cell division process will takes place, that time they will start to condense. यानी वो जो threads है तो they will come to close to each other. As they will come to close to each other, thickness will increase, है ना? And then they will divide. So definitely they will carry some genetical character from one cell to another cell. तो अगर वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो वो फर्टिलाइजेशन में भी सेम थिंग होगा, है ना? कि जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स है तो वो फर्टिलाइजेशन होते वक्त एक से दूसरे इसमें जाएगा. तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं they are made up of DNA. Okay? Yes, ma'am. Are made up of DNA. Do you understood or not? मैं क्या Yes, बोल yes. रही हूँ? Yeah. तो these chromosomes they are made up of DNA, and you know DNA is the double stranded structure that we had already studied, है ना?
and these DNA, they are tightly coiled in these chromosomes. ये chromosomes में बहुत ऐसे tightly coiled होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं बोलती हूँ कि क्रोमोसोम्स जो है तो दे आर having, they are the genetic material, so that is true. If I will say कि DNA, they are the genetic material, so that is also true because these chromosomes, they are made up of DNA, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो दूसरा अपन ने जो आंसर दिया था जीन, so what is gene? Gene actually, it is the functional segment of this DNA, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोम्स किससे बना था, तो डीएनए से, और डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, we had already seen that these DNA, they are responsible to carry genetic material, and second thing, they will provide particular information for protein synthesis process ना। Yesterday we had seen कि mRNA that is form on the DNA, जो डीएनए है उसी के ऊपर में वो फॉर्म होता है, तो डेफिनेटली जो भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशंस है तो वो क्या होती है, ट्रांसक्रिप्ट होती है। किसमें, एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होती है। का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसे जैसे ट्रांसक्रिप्ट करना यानी कॉपी डाउन करना, जैसे कि वैसे कॉपी डाउन करना। So whatever genetical information is present in the DNA, that will get transmitted into the mRNA. So that process is called as transcription, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें ये कॉपी डाउन हो गया। अब डीएनए जो है तो डीएनए में ये छोटे छोटे सेगमेंट्स जो होते हैं, फिर फंक्शनल सेगमेंट्स, these functional segments are called as genes, और it is also called as cistron, जो मॉडर्न कंसेप्ट है। तो मॉडर्न कंसेप्ट में उसी को हम सिस्ट्रॉन भी कहते हैं। सिस्ट्रॉन, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ओके। तो जीन, इट इज nothing but the segment of DNA which contain how many base pairs, so it contain near about 600 base pairs। इसमें 600 बेस पेयर है। बेस पेयर का मतलब समझ में आया ना, बेस पेयर यानी जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये जो है तो ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच जीन, तो नियर अबाउट 600 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच जीन, ठीक है। दीज जेनेटिकल मैसेजेस, दे आर कैरिड आउट इन पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बेसिस। ये जो बेसिस होता है तो 99.9% सभी का कैसा होता है, सेम होता है। ओनली 0.1% इज डिफर, एंड दैट इज आवर आइडेंटिटी। ये हमारी आइडेंटिटी। मैं अलग हूँ, आप लोग सभी जो है तो एक दूसरे से अलग है। हमारे मम्मी पापा अलग अलग है, हमारे भाई बहन अलग अलग है। तो all these are the identity, and this identity is due to the sequence, जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है तो वो थोड़ा सा अलग होने की वजह से हम लोग अलग हैं। अदरवाइज 99.9% जो है तो we have the same features, ठीक है। तो हियर जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो दिस जेनेटिकल मैसेजेस दे गेट ट्रांसमिट आउट टू एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है। जीन्स जो इंडिविजुअल पर्सन है उसमें क्या रहेगा, अलग अलग, ओके। तो हियर ईच जीन फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक
यहाँ पर जो है तो परफॉर्म द सेम फंक्शन। ओके, तो जो सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाला है, जिसका स्ट्रक्चर सेम है, तो दे आर कॉल्ड एज, यानी मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी बोथ विल बी द सेम, तो दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो हर होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो क्रोमोसोम्स है, सॉरी, ये जो जीन्स है, तो ये अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि दो जीन्स जो है तो उसके अल्टरनेटिव्स होते हैं। अब वो अल्टरनेटिव्स है, तो अगर वो अल्टरनेटिव्स कई बार एक ही जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर अलग अलग जो लोकस है वहां पर प्रेजेंट रहेगी। लोकस मीन्स पोजीशन। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर बोले तो सॉरी, एलेल्स बोले तो, एलेल्स मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी क्या, तो जैसे अगर हम अपना स्किन कलर लेते हैं, या हम अगर हमारी इंटेलिजेंस से लेते हैं, या हमारी हाइट कंसिडर कर रहे हैं, तो आर वी ऑल आर इक्वल इन हाइट? डू वी हैव सेम इंटेलिजेंसी? तो नो, हमारी ना इंटेलिजेंसी सबकी सेम है, ना स्किन का कलर सबका सेम है, ना ही हम हमारी हाइट सबकी सेम। तो ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब यहाँ पर जो है ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स की जो पेयर है, तो वो डेफिनेटली एक ही तो कैरेक्टर्स जो है तो वो कैरी करेगी। कैरेक्टर एक ही रहेगा लेकिन फॉर्म अलग रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बताया इंटेलिजेंस वगैरह सबका, तो वो जो है होमोलोगस क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट रहेंगे। और अगर ये जो पेयर है तो ये दूसरे जीन पर अगर प्रेजेंट है तो उसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस में डेफिनेटली चांसेस जो रहेंगे तो वो 50-50 के रहेंगे, लेकिन होमोलोगस में 100% चांसेस रहेंगे नेक्स्ट जनरेशन में सेम कैरेक्टर्स आने। यानी हमारे अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो वो हमें भी इंटेलिजेंसी जैसी की वैसी आ जाएगी। अगर उनका म्यूजिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हमारा भी म्यूजिक अच्छा ही रहेगा। लाइक, ओके, डू यू अंडरस्टूड? Hear me बेटा? Yes, ma'am. Yes. Now, अब जो है तो what is the importance of this nucleic acid? So let's see. So nucleic acid, they are able to reproduce their own kind. डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, आरएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो they are able to reproduce themselves, their own kind, or they may get stored, or they may express, or they may transmit any genetical information. जो भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है तो वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, या एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अब दे कैन अंडरगो म्यूटेशंस आल्सो। म्यूटेशंस मींस उनमें चेंजेस हो सकते हैं, और चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, इसीलिए तो हम एकदम एक जैसे नहीं रहते मम्मी पापा के जैसे। सेल डिवीजन में जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो दैट टाइम न्यूक्लिक एसिड चेन जो होती है उसका डुप्लीकेशन होता है। अब ये डुप्लीकेशन जब होता है तो इसमें जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है तो उसमें 50% पेरेंट सेल और 50% न्यू ऐसे जेनेटिकल कैरेक्टर्स जो है तो ऐड होते हैं। ठीक है,
डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है तो वो ओरिजिनल स्ट्रैंड से क्या होता है, अनकॉइल्ड हो जाता है और वो एक टेम्पलेट का काम करता है जिसमें दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री चेन प्रोड्यूस होती है और इस तरह से यहाँ पर 50% मदर सेल या पेरेंट सेल और 50% न्यू ऐसे जो है तो कैरेक्टरिस्टिक एडअप होते हैं। यहाँ पर अगर हम पेयरिंग रूल की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एडेनिन that will always make pair with the thymine and guanine will make pair with the cytosine. So this pair will be present in the DNA. What about the RNA? So in RNA, adenine will make pair with the uracil and guanine will make pair with the cytosine. है ना? तो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड रहेगा that will exactly constituent of the nucleotide sequence which was present in the original one. जो original complementary strand जो था तो जो parent strand था तो वैसे ही बनेगा। तो ये जो रहेगा इसके वजह से यहाँ पर 2 pairs strand produced होते हैं। Okay, then the next biological importance is that DNA, they are responsible to produce mRNA, that is messenger RNA, and this messenger RNA help in placing the amino acid in a code form for protein synthesis process. So this is again one of the importance of nucleic acid. Then RNA functions primarily in the cytoplasm that we had seen. So actually mRNA is formed in the nucleus and then it will get transferred into the cytoplasm. So here in the cytoplasm on ribosomes, protein synthesis process takes place. The formation of RNA template, it is nothing but the nuclear DNA. We can say like that. Then ribosomal RNA and transfer RNA, they are both involved for the protein synthesis process. RNA can be synthesized by RNA polymerase enzyme, which is independent of presence of DNA, and no need to be here, no need of DNA because this RNA polymerase, they will be act as a template. Then adenylate acid in the combination with 2 molecules of phosphate. It is the biochemical unit of energy exchange. It is energy exchange in all the cell, and so it is called as ATP, adenosine triphosphate. तो adenosine ये एक energy exchange का भी काम कर रहा है। तो when 3 phosphate group, they will attach to this adenosine, so it will form adenosine triphosphate, which is energy currency, जो energy currency का काम करता है। ठीक है? Then biological oxidation reduction processes, they will transport oxygen atoms or electrons through this oxidized system of substance, which is called as hydrogen acceptor, or they are called as electron transport agents. So electron transport agents like NAD, that is nucleotide adenine dinucleotide, then FAD, that is flavin adenine dinucleotide. These are made up of again. So this is the main importance of nucleic acid. Do you understood? Do you understood? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. So let me recall again one time. In nucleic acid, they can reproduce their own kind, or they may store or express or transmit some genetical information. Second is they undergo mutation. Third is in cell division, nucleic acid chain is duplicated, preserving in each daughter cell and informations contained in the parent cell. Then third, according to pairing rule, DNA adenine only combine with the thymine, but guanine with the cytosine and vice versa. Then DNA produces mRNA, which help in placing amino acid in a code for the protein synthesis process. After that, RNA functions primarily in the cytoplasm of cell as a template in connection with the synthesis of proteins as well as in the ribosomes. Then ribosomal RNA and transfer RNA, they are responsible for the protein synthesis process. RNA can be synthesized by RNA polymerase chain, polymerase enzyme, which is dependent on the presence of DNA acting as a template. Then adenylic acid in combination with the two molecules of phosphate, it is a biochemical unit of energy exchange in the cells, which is said to be ATP. After that, the last one, biological oxidation reduction, involve transfer of hydrogen atoms or the electron through the organized system of the substance, which is called as hydrogen acceptor, or they are also called as electron transport agents. And hydrogen acceptor, they are nucleotide, NAD, FAD are the examples of them. Okay. Then the next topic is nucleoproteins. So what is nucleoproteins? Nucleoproteins, these are nothing but the conjugated proteins. These conjugated proteins, they contain nucleic acid and the protein. Which protein they contain? So they mostly contain histone. उसमें histone जो है तो वो present रहेगा, ठीक है? तो in nucleoprotein, some salt like combination between the positive charge basic protein and negative charge nucleic acid will be there. जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो उनमें एक चेन बनी रहती है. साइटोप्लाज्म जो होता है तो उसमें भी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, which is found particularly in the ribosomes. Ribosomes में जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो definitely they are present in the ribosomes. All living cells, they contain nucleoproteins, and some of the simplest system means viruses, they consist of entirely nucleoprotein. उसमें nucleoprotein ही present होता है. तो यहाँ पर जो है, let's see some proteins. So first protein is given, nucleoprotein is given, that is the protamine. Protamine, it is the basic protein and it has a low molecular weight. इसका molecular weight जो है तो काफी कम होता है, and ये हमेशा जो है तो ये DNA के साथ में ही मिलेंगे, and they are mostly present in the fish's sperm. जो fish का sperm होता है उसमें हमें protamine देखने के लिए मिलेंगे. They produce large quantity of arginine. Arginine जो है तो large quantity में produce करते हैं, and a less amount of neutral amino acid. तो जब hydrolysis की process होती है तो that time they can produce less amount of neutral amino acids. ठीक है? इनका जो isoelectric pH जो होता है तो isoelectric pH is mostly 12 रहेगा, means they are alkaline. Okay, the polypeptide chain जो है प्रोस्टामाइन की, तो ये जो है
डीएनए मॉलिक्यूल को व्रैप्ड रहती है, वो इस तरह से व्रैप्ड रहती है कि पॉजिटिवली चार्ज अर्जिनिन जो है तो वो क्या करेगा, दैट विल फॉर्म द सॉल्ट लिंकेज विद द फॉस्फेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड का फॉस्फेट जो बैकबोन बनाता है, तो वहां पर जो है ये इस तरह से व्रैप रहेगा अर्जिनिन के साथ में कि वो एक सॉल्ट का लिंक बनाता है। देन इसका एग्जांपल जो है तो हम दे सकते हैं, दैट इज द साल्मिन। साल्मोन स्पर्म्स में जो है तो साल्मिन प्रेजेंट होता है। वैसे ही हेरिंग में जो स्पर्म्स, हेरिंग के जो स्पर्म्स है उसको जो है तो फ्लूपिन कहा जाता है। दैट इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन। ओके, द नेक्स्ट प्रोटीन दैट इज द हिस्टोन। अब हिस्टोन जो है तो ये मोर कॉम्प्लेक्स का प्रोटीन होता है देन प्रोटामाइन। ये जो है तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है तो दैट इज मच लार्जर, बहुत ज्यादा लार्ज होता है, और दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट विद द डीएनए। जो डीएनए होते हैं तो उसको व्रैप करने के लिए डीएनए, the approximate size of DNA is 2 meter. 2 meter approximate size है, और न्यूक्लियस जो है तो दैट इज वेरी स्मॉल। तो इसको बाइंड करने के लिए इस हिस्टोन का यूज होता है। तो यहाँ पर जो है तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है हिस्टोन का, तो दे कैन प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड इट विल प्रोड्यूस। एंड हियर ये न्यूक्लियोहिस्टोन जो है तो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो दैट विल बी प्रेजेंट इधर इन द स्पर्म्स, और दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द आरबीसीज। आरबीसीज में भी प्रेजेंट रहेगा, और बर्ड्स में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोटीन इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नाम से पता चल रहा है कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो डीएनए में प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो मटेरियल है ये इंसोल्यूबल होते हैं NaCl में। जैसे 0.15 मोल अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो उसमें वो इनसोल्यूबल रहेंगे, बट इफ वी कंसिडर 1 mole NaCl तो then definitely they will soluble in it. They have high molecular weight. उनका molecular weight high होता है, near about 10 million to several hundred millions उसका molecular weight होता है, and they are elongated, highly elongated thread-like structure. ये thread-like shape में होते हैं, ये बहुत ज्यादा elongated. Okay, do you understood girls? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. What about the राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन? तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नाम से पता चल रहा है कि राइबो यानी आरएनए जो है तो इसमें ये प्रेजेंट रहेगा। तो एक्चुअली आरएनए कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो राइबोसोम्स पे। तो ये जो सेल्स के साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम्स पे प्रेजेंट रहेंगे, एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए है और प्रोटीन्स उससे ये बना रहेगा। राइबोसोम्स जो है इकोलाई ये बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर, तो इसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन हमको देखने के लिए मिलता है। राइबोसोम्स जो है जो मैमल्स में प्रेजेंट है और प्लांट ओरिजिन वाले जो है तो उसमें 40 to 50% जो है तो आरएनए प्रेजेंट रहेगा, बाकी का पूरा ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ही प्रेजेंट। ओके, डू यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड का जो पार्ट जितना दिया था तो वो कंप्लीट हो गया। ओके, समझ में आया क्या बेटा? Yes, ma'am. अब हम एंजाइम का पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे एंजाइम का।
देखेंगे कि एंजाइम के बारे में पूरा। हम लोगों को जो है तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं तो डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए आती है स्ट्रक्चर की, तो एक्चुअली मुझे ऐड नहीं किया गया है आपके ग्रुप में, अभी मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, तो मैं बोलती हूँ मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूंगी। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आते हैं, इसलिए अपने को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। डेफिनेशंस पूछते हैं, इम्पोर्टेंस पूछते हैं, जैसे अभी अपने बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखा, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए के जो टाइप्स हैं अलग अलग उनका स्ट्रक्चर, आरएनए और डीएनए में डिफरेंशिएशन, ये सब जो है तो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं ये लेसन। ओके, अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? डू यू हैव एनी डिफिकल्टी? किसी को कुछ पूछना है क्या? No, ma'am. ओके, तो कैन आई लीव टुडे? Tomorrow I will start the new topic, that is enzyme. Okay? Okay, ma'am. Okay बेटा। Okay, आपका ma'am. इसमें सिलेबस कम है, बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रहता, और यहाँ पे ये जो सिलेबस है ना वो बहुत कम है। प्रैक्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो वो प्रैक्टिकल्स जो है तो हम देखेंगे बाद में। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। मैम सेल्फ स्टडी के लिए 12th की बुक्स यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा, यहाँ पर जो है तो आराम से रेफर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? ओके मैम। All the concept they are clarified in the 12th standard book. अच्छे से आपका हो जाएगा। केमिस्ट्री जो है ना, बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट दिया है, बायोमोलिक्यूल्स वाला लेसन दिया है देखो केमिस्ट्री में, और यहाँ पर इसमें भी है, बायोलॉजी में भी दिया हुआ है, तो दोनों अच्छे से पढ़ के आपका क्लैरिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके मैम। थैंक यू बेटा। Thank you, ma'am. कैन आई लीव? Yes, ma'am.